Well students, this video is in continuation of noun part 1. Alright, as I had told you, there are 5 types of nouns: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. In nouns part 1, I had explained 2 types of nouns, common noun and proper noun, right? And in this video, we will talk about rest of the 3 types. So first of all, we'll start with collective noun. Hope common and proper nouns are clear to you. Now the third type is collective noun. First of all, what is the meaning of collective? In Hindi you call it समूह वाचक संज्ञा. समूह. What is समूह? A group. What is the meaning of collective? Collective means a collection, एक group. It is a name which is given to a group of things, and that group, it is considered as one unit or one whole. Are you getting what I am saying? See, it can be a group of animals such as lions, it can be a group of things such as toys, right? Or it can be a group of people. Simple. When a noun stands for a collection of persons or things considered as one complete whole, it is called a collective noun. As army, flock, crowd. Let us do it with the help of examples. देखो, the word army stands for a collection of soldiers, not for an individual soldier. अगर आपको कहना है कि देखो मेरे फादर आर्मी में हैं, my father is a soldier, he is an army, तो you are telling in a group, पूरे के पूरे soldiers का group, army. Is it clear? The word flock, it stands for a collection of sheep, not for one sheep. The word crowd stands for a collection of people. The word class, class 4, class 5, class 6, it stands for a collection of pupils. If you want to give flowers to somebody on some occasion, so would you go and say, see, I have brought 33 flowers for you? Not now. You will use a word for the collection of the flowers. You can say, I have brought a bunch of flowers, yeah, a bouquet of flowers. The bouquet is a collective noun which is given to all the flowers in a group. Is that clear to all of you? So we have different names for the different groups, but you have to keep one thing in your mind. For collective nouns, there should be one category. For example, देखो, pack, P-A-C-K, pack, pack of wolves, pack of dogs. We use pack word for a group of dogs also and for a group of wolves also, right? But if there are 10 dogs and 10 cows, they are sitting together, then you cannot call them a pack of animals. That would be wrong, because a group of cows, it is called herd, right? And a group of dogs is called pack. So we cannot give them a common name because 2 different types of animals are sitting in the group. Is it clear? One common name can be given to a group only जब एक ही तरह के animals वहाँ पर बैठे हों. This thing should be very very clear. हाँ, 2 different collective nouns हम use कर सकते हैं एक single noun के लिए. जैसे for flowers we can use a bunch of flowers also or a bouquet of flowers. Pack word can be used for a pack of dogs, a pack of wolves, herd of goats, herd of cows, flock of sheep, flock of birds. This way we can use one collective noun can be used for 1 or 2 different types of groups of animals. But आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि if different types of animals are in a group, तो we cannot give them a common name. Is it clear? So we have so many examples. Okay, collection of sheep, it is called flock, people, crowd, class. ठीक है? This way so many collective nouns examples. Group of persons, people. Persons में बेटा people word अगर आ गया तो people is a collective noun, क्योंकि people में there can be a small group, 2 हो, 3 हो, 4 लोग हों, तो we can call them people. But if you are talking about crowd, तो एक group of persons, बहुत बड़ी crowd, बहुत सारे लोग खड़े होंगे, then only you say ना कि बहुत भीड़ हो रही है बाहर, then it can be used. Batch, BATCH, batch means group of students, army group of soldiers. Okay, very interesting. Team,
अब टीम में क्या होता है बेटा, एक टीम में इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, देयर आर 11 प्लेयर्स, दे आर मेकिंग अ टीम, लेकिन टीम के अंदर एक सिंगल प्लेयर भी टीम को बनाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट बैडमिंटन, तो इन बैडमिंटन 1 प्लेयर इज़ देयर ओनली, लेकिन वो अकेला प्लेयर तो नहीं है ना, उसके साथ कोच भी है जिसने उसको ट्रेनिंग दी है, और भी बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं। तो दैट इन दैट केस सिंगल प्लेयर जो है कैन बी कंसिडर्ड एज टीम। तो टीम वर्ड जो है गेम्स के लिए हम टीम वर्ड को यूज़ करते हैं। टीम एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें 1 सिंगल प्लेयर ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज टीम फ्रॉम इंडिया। इंडिया की टीम गई है तो 1 प्लेयर हैज़ गॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So that's all about collective nouns. Okay, choir of singers, pride of lions, so many examples are there. You can go through all the examples. They are given in this video. Okay, now next type of noun is abstract noun. Abstract noun is very important noun and you need to understand it in a very proper way. So what is the meaning of abstract noun? First of all, in Hindi it is called भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपको नाम बता रहा है भाव। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? द नाउन दैट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग, अ स्टेट दैट कैन बी फेल्ट एंड नॉट टच्ड बाय हैंड्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसे हम हाथ से टच नहीं कर सकते, हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। ओके, जस्ट हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। They cannot be identified from one of our 5 senses. You know, we are having 5 sense organs: eyes, nose, ears, skin, tongue. We are having 5 sense organs ना। तो आप देखो जो चीज़ें हम इन 5 sense organs से नहीं पहचान सकते, they are abstract nouns. Let us do it with an example. सबसे पहले हम लेते हैं honesty. Okay, now tell me, can you touch honesty? क्या आप ऑनेस्टी को छू सकते हो? क्या आप देख सकते हो? नो। हाँ, आप उस पर्सन को देख सकते हो जो ऑनेस्ट है। पर्सन इज देयर, लेकिन ऑनेस्टी तो एक क्वालिटी है जो उसके पास है। ऑनेस्टी कैन नॉट बी टच्ड, सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ऑनेस्टी क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज दैट क्लियर? सेम वे लव, थेफ्ट, हेट, फीलिंग्स, ये सारी की सारी क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बेटा। हम इन चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको अपनी सेंस ऑर्गन्स के साथ नहीं पहचान सकते। फॉर एग्जाम्पल, चलो अब हम लेते हैं सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स। अब नाउ जस्ट टेल मी, मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट का नाम है। क्या आप इसको छू सकते हो सब्जेक्ट को? नो, वी कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट। हाँ, आपको कोई अगर मैथ्स का कोई फॉर्मूला दे देना तो यू कैन सी दिस फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को तो आप कहोगे दैट फॉर्मूला इज फ्रॉम मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम साइंस में मैथ्स के फॉर्मूलाज दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, फॉर्मूलाज तो अलग हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात करें तो वो एक सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी टच्ड। ओके, यू कैन नॉट टच दैट, यू कैन नॉट सी दैट। आप उसके फॉर्मूलाज देख सकते हो, मैथमेटिक्स को नहीं देख सकते। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक सब्जेक्ट है। तो ऑलराइट, तो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से ब्रेवरी, बहादुरी, कैन यू टच ब्रेवरी? नो। कैन यू सी ब्रेवरी? नो। आप पर्सन को देख सकते हो, द पर्सन, आप यू कैन से दैट इज़ ए ब्रेव पर्सन। तो ब्रेव तो एडजेक्टिव हो गया, राइट? लेकिन ब्रेवरी जो है एक नाम दे दिया गया एक चीज़ को। यदि कोई पर्सन वैसे बिहेव करता है तो ब्रेवरी कहलाती है। तो ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आर यू गेटिंग बेटा? नाउ सेम बर्थडे, आपने जब जन्म लिया, द डे यू वर बॉर्न, ठीक है ना, तब उसको नाम दे दिया गया, इट इज़ बर्थडे, लेकिन यू कैन नॉट टच दैट, यू कैन नॉट सी दैट। क्या आप देख सकते हैं बर्थडे को? आप देख नहीं सकते। हाँ, बर्थडे के सेलिब्रेशन पे केक्स हैं, बलून्स हैं, डेकोरेशंस हैं, यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स, दे आर डिफरेंट। बट बर्थडे पर्टिकुलर जो वर्ड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन नॉट बी सीन। इसी तरह से ऑल द डेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऑल द सब्जेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इट डिपेंड्स। ओके, लिबर्टी, एंगर, गुस्सा करना, somebody is angry at you, you cannot see anger, ठीक है, you cannot touch anger, but हाँ, एक्सपीरियंस तो आप कर रहे हो, you can see the person
who is showing anger, but anger is abstract noun. Is that clear beta? So hope this is clear to you. So हम कई बार क्या करते हैं, हम कोई सच ट्रुथ, आप somebody is telling you the truth, तो क्या आप उसको देख सकते हो? हाँ, आप कहोगे कि हम सुन सकते हैं, आप सुन नहीं रहे हो, आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो, आप ट्रुथ नहीं सुन रहे हो, आप आवाज़ सुन रहे हो। सच ट्रुथ जो है वो कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके हाँ, टीयर्स आंसू, किसी के आप आंसू देख सकते हो, लेकिन ग्रीफ GRIEF ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू कैन नॉट सी ग्रीफ, यू कैन सी द टीयर्स कमिंग आउट ऑफ द आईज, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम ग्रीफ की बात करें तो ग्रीफ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो देयर आर सो मैनी वर्ड्स विच यू हैव टू थिंक कि आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कुछ चीज़ों को। ओके बेटा, अगर हम बात करें चाइल्डहुड, अब आप कहोगे चाइल्डहुड बचपन, क्या बचपन को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो? नेवर। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, अगर हम खाली चाइल्ड की बात करें, बच्चा, चाइल्ड कैन बी सीन, हम बचपन को नहीं देखते, हम बचपन में देखते हैं किसी को। वी कैन नॉट टच चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Is that clear? Hope this abstract noun is clear to you. I have given so many examples. You can go through the examples. Alright बेटा, तो simple abstract noun क्या होता है? वो चीज़ें जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसको हम फिजिकली छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारी सेंस ऑर्गन्स उसको पहचान नहीं सकती, समझ नहीं सकती, तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट भाव एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फीलिंग तो उसकी हो सकती है, बट सेंस ऑर्गन्स का कोई रोल उसमें नहीं होता। इज इट क्लियर बेटा? इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट काइंड ऑफ नाउन इज मटीरियल नाउन। सो व्हाट इज मटीरियल नाउन? इन हिंदी इट इज कॉल्ड पदार्थ वाचक संज्ञा। सिंपल। नेम ऑफ ए मटीरियल और सब्सटेंस, मटीरियल नाउन। जो भी चीज़ हमें नेचर ने दी है, whatever has been given to us by nature, gold, silver, salt, water, sunlight, stone, air, ये सब की सब क्या होती है? मटीरियल नाउन। मटीरियल से नाम से पता चल रहा है। मटीरियल हम कहते हैं ना, ये टेबल किससे बनी है? वुड से बनी है, वुड से बनी है। वुड क्या हो गया उस टेबल के लिए? मटीरियल हो गया ना। अच्छा, अब हम किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं, ये ज्वेलरी किससे बनी है? गोल्ड से बनी है, तो गोल्ड इज अ मटीरियल फॉर द ज्वेलरी। राइट बेटा? दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो ब्रिक और सीमेंट क्या हो गए? मटीरियल। जो मटीरियल यूज हुआ है किसी चीज़ को बनाने के लिए, मटीरियल नाउन्स हो गए। यस, मटीरियल नाउन्स आर ऑल्सो कॉमन नाउन्स, बट बिकॉज दे आर मटीरियल वी यूज देम टू मेक मैनी थिंग्स, इसीलिए हम उनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? मटीरियल नाउन की कैटेगरी में। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, वट एवर वी गेट फ्रॉम नेचर, एंड मैन मेड चीज़ें भी। मैन मेड में क्या आ गया? सीमेंट, सीमेंट तो मैन मेड है। ब्रिक, घी हम किससे बनाते हैं? दूध से बनाते हैं। क्लोथ, ओके, तो ये सारी के सारी क्या है? मटीरियल नाउन है। ऑलराइट, मटीरियल नाउन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So with this, our topic nouns is complete. So this was part 2. If you have not seen part 1, common noun and proper noun, just go through that also. That's all. If you are having any doubt, then you can ask in the comment box. I can clear it. Right, beta? Learn all these 5 kinds of nouns. Okay. Take care. Be safe. Bye-bye.